Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the घटना चक्र series of polity and हमारे previous videos में हमने क्वेश्चन 80 तक फंडामेंटल राइट्स के MCQs सॉल्व कर लिए थे. ओके, एंड नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81. Okay, let us see question number 81. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Under which article the above reservation of conviction for crime is given? सी, ये जो बोल रहे हैं नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश कि एक ऑफेंस के लिए अगर उसे एक बार पनिशमेंट मिल गया है तो सेम ऑफेंस के लिए उसका दोबारा प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट नहीं होगा. इसे हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी. व्हाट डू वी कॉल इट? डबल जियोपार्डी. ओके, एंड हमें पता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जियोपार्डी एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. ये है अपना आर्टिकल 20 में. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच आर्टिकल गिव्स safeguard to the fundamental rights arrested person? So this is Article 22. You must remember that. Article 22 of the Constitution mentions that no arrested person shall be detained in custody without being informed as soon as may be on the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner. So basically जो rights हैं arrested person के, rights of arrested person, ये किस में है? Article 20 में. Do remember Article 22 में. In Article 20 we have those three clauses of no ex post facto law, no self incrimination, no double jeopardy. In Article 22 we have the rights of arrested person. And ये तो पता ही है आपको, Article 19 से लेकर 22 ये अपने आते हैं अंडर right to freedom में. Yes? Okay, next question. Which of the following is not correctly matched? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है. Okay? A. Article 22 clause 1, right to be defended by a legal practitioner ऑफ हर और हिज चॉइस. ये अभी हमने पढ़ा है. राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यस, तो उसके पास ये राइट है टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. सो फर्स्ट इज करेक्ट. आर्टिकल 22 क्लॉज 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल ऑथोराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months. ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड है अंडर आर्टिकल 22 इट इज 3 months. रिमेंबर इट. Next, Parliament may by law prescribe the circumstances under which a person may be detained for a period longer than 3 months. ये Article 22 Clause 2 में they are saying this. This is wrong. D. Basically Article 22 में ये वाली चीज़ given है that if a person is arrested or detained है custody में, he shall be produced before the magistrate within 24 hours. Within 24 hours. और इसमें हम journey time को exclude कर देते हैं. Excluding the journey time. So accordingly C is incorrect. Article 22 clause 1, no person who is arrested shall be in custody without being informed as soon as may be of the ground of such arrest. Yes, this is correct. So basically हमें बताना था wrong क्या है. So wrong है अपना C. Next, under the Preventive Detention Act a person can be arrested without trial for. So याद रखना प्रिवेंटिव डिटेंशन में विदाउट ट्रायल एक पर्सन 3 months के लिए डिटेन हो सकता है. ओके, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 दैट विदाउट ट्रायल, प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इसका पीरियड है 3 months. ओके, रिमेंबर इट. नेक्स्ट, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर सेम क्वेश्चन 3 months. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देख लेते हैं एक बार कि पूछा क्या है इन्होंने. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. या दिस इज करेक्ट. ऑब्वियसली आई थिंक इट इज गिवन इन आर्टिकल 365 और 356. आई कैन नॉट रिमेंबर इट नाइसली, बट हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, the Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. This was wrong. Constitution of India कोई भी exemption ऐसा नहीं लगाता है states पे कि आप legal counsel जो इंसान preventive detention में है उसे ना दो. This is wrong. Okay. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. See, नॉर्मली हमारे आर्टिकल 20 में हम इसे बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. दैट कोई इंसान खुद को बोल रहा है कि मैंने ये गुनाह किया है, उसे हम एज एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते कोर्ट में. बट यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में. यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. दिस इज अ वेरी ड्रैकोनियन एक्ट एंड इसमें अंडर दिस एक्ट कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन बी यूज एज एन एविडेंस. ये हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस. ओके, सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट वन. सॉरी, कैन नॉट बी यूज्ड, तो ये भी रॉन्ग हो गया.
मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस, ये हम यूज़ कर लेते हैं एज एन एविडेंस, ठीक है। सो ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट गिवन है। ये अपना करेक्ट था आर्टिकल 355 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन, ये भी गलत है। सो अकॉर्डिंगली सिर्फ वन स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली। क्लियर, आर्टिकल 355। नेक्स्ट, with reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. C. In India, parole is not a matter of right. So this is wrong. ठीक है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो गई है parole इंडिया में कि भाई हमने मैटर ऑफ राइट बना दिया है। This is given to a prisoner on the grounds of his good behavior. State governments have their own prisoners release on parole rules. Yes, state government के अपने rules होते हैं, prison rules हैं उनके अपने, parole rules हैं उनके अपने. So accordingly option B will be the correct answer. नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स, ये कह रहे हैं जो प्रोविजन है ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यस, आर्टिकल 25 में है ये। राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपल्स बाय 6, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वैसे कहा जाता है आर्म्स आप कैरी नहीं कर सकते हो, बट ये वाली चीज़ जो है कैरिंग क्रिपल्स बाय 6, दिस इज एन एग्जाम्पशन, ये भी अलाउड है इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। थर्ड, स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, यस, स्टेट कैन मेक राइट्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स। right to conversion of religion of people by religious bodies, obviously this is clearly wrong. Under the freedom guaranteed to you to practice your religion, आप किसी और को फोर्स नहीं कर सकते अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। So accordingly this is wrong, this is wrong, this is wrong. Option A will be the correct answer. Clear? Next, under which article of the Indian Constitution wearing of kirpans by 6 is deemed as a right to freedom of religion? I told you this is under article 25, that yes, 6 can carry kirpans and it is deemed to be a part of right to freedom of religion. Next, article 25 of the Indian Constitution refers to the, हमारा जो आर्टिकल 25 है रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें पता है 25 to 28 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, हिंदू वर्ड में आते हैं बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स, याद रखना ये आप, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिक्स, ये हमारे आर्टिकल 25 के अंडर हिंदू कैटेगरी के अंडर आते हैं। सो पारसी डज नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी, इन्होंने पूछा है क्या नहीं इंक्लूड होता हिंदू वर्ड में। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू, ये आपको लर्न करने हैं क्या चीज़, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे आर्टिकल 25 पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे लगेंगे। क्या क्या है वो? पब्लिक ऑर्डर, health and morality, these three are the restrictions जिस पे हमारा आर्टिकल 25 सब्जेक्टेड टू है। ह्यूमनिज्म ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है रिस्ट्रिक्शंस का, क्वेश्चन में भी इन्होंने यही पूछा है। yes, so the question is saying that according to article 25 of the constitution right to freedom of religion is not subjected to, सो आंसर विल बी डी, ह्यूमनिज्म, क्योंकि हमें पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। उन्होंने पूछा है क्या ग्राउंड नहीं है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इन द आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, वही ग्राउंड रहेंगे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी ये फिफ्थ है, ओके दिस इज फिफ्थ, दिस इज फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है हमारे रिस्ट्रिक्शंस? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ओके, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 26 में भी सेम ग्राउंड्स हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 94 में हमसे पूछ रहे हैं क्या करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यस ये तो करेक्ट है। 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और अभी हमने इसके ग्राउंड भी पढ़े हैं लास्ट क्वेश्चन में, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। डी, आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ स्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज, ये अपना आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये है अपना आर्टिकल 30, सो दिस इज रॉन्ग, उन्होंने यही पूछा है नॉट करेक्टली मैच क्या है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following pairs is not correctly matched? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, article 23 correct. Protection of interest of minorities, article 29 yes correct, अभी हमने पढ़ा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पर भी है आर्टिकल 29। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमें पता है आर्टिकल 32, इसे ही हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये है अपना आर्टिकल 30, जो मैंने आपको यहाँ पर 29 गिवन था, यहाँ
आई टोल्ड यू इट इज़ आर्टिकल 30, यहाँ पे 31 गिवन है बट इट इज़ आर्टिकल 30। इन्होंने हमसे यही पूछा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो अगर हम देखें ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये करेक्टली मैच नहीं है बिकॉज ये है अपना आर्टिकल 30। ओके नेक्स्ट, which article of the constitution protects the rights of the minorities to establish and administer educational institutions of their choice। ये है अपना आर्टिकल 30 टू establish and administer educational institutions। ये राइट है अपना आर्टिकल 30 के अंडर। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज वो है आर्टिकल 29। ओके बट हमसे पूछा है establish and administer educational institutions आर्टिकल 30। नेक्स्ट, under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। Same question, Article 30, that the minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। Next, assertion and reasoning based question है ये। assertion is Article 30 of the Constitution of India does not define the term minorities। सही बात है, हाँ माइनॉरिटीज का मेंशन है बट आर्टिकल 30 में कहीं माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया है। They have said in Article 30 that minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। डिफाइन कहीं नहीं किया, इन्होंने यही कहा डज नॉट डिफाइन, तो ये सही है। रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, या दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 13 में अबाउट द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बट दीज बोथ आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअली अलग बात कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटीज को, फिर सेकंड स्टेटमेंट बता रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन किन माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। बेसिकली बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। अब बिकॉज लगा के देखो दोनों के बीच, इट इज नॉट मेकिंग सेंस। Article 30 of the Constitution of India does not define the term minorities because the Constitution recognizes only linguistic and religious minorities। No, it is not making any sense. So accordingly option B will be the correct answer। Both A and R are true but R is not the correct explanation of A। Okay, next, the Constitution of India recognizes, अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 30 में religious and linguistic minorities हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो इन्फोर्स हो सकते हैं वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की, एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराने की। सो आंसर विल बी डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें पता है गार्जियन कौन है हमारा, जुडिशरी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, under the Indian Constitution who is the guardian of the fundamental rights। Same question, Supreme Court। Next, under the Indian Constitution who among the following is considered to be the guardian of fundamental rights। See कितनी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, जुडिशरी। नेक्स्ट, which one of the following is regarded as the protector of fundamental rights of citizens and guardian of the Constitution। Same question, Supreme Court। नेक्स्ट, which of the following statements is not correct। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। के मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने इसे 100 में भी पढ़ा था दैट के मुंशी वॉज द ओनली मेंबर फ्रॉम कांग्रेस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, ये भी हमें पता है 26 नवंबर। थर्ड, द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इफ यू डोंट रिमेंबर देन ट्राई टू रिकॉल दैट पंचायती राज हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था। ओके, ये प्रॉपर सीक्वेंस है कमेटीज का। बैग सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, फिर जीवी के राव कमेटी। डी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल्स भी आपको पता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट हमारा गार्जियन है, नो इट इज सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने यही पूछा था, नॉट करेक्ट कौन सा है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following rights can be enforced under the article 32 of the Indian Constitution। आर्टिकल 32 में हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इन्फोर्स कराता है वो, फंडामेंटल राइट्स। आई टोल्ड यू अंडर आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं। इन्होंने यही पूछा आर्टिकल 32 के अंदर क्या इन्फोर्स होता है। सो ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स विल बी द करेक्ट आंसर। बट याद रखना जो हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 226, इसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर लीगल राइट्स भी एनफोर्स हो सकते हैं, गेटिंग इट। बट आर्टिकल 32 के अंदर ओनली फंडामेंटल राइट्स। ओके ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अब आपको लर्न हो जाना चाहिए। लास्ट वीडियो में आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी मच डिटेल एंड ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32।
So option A will be the correct answer. Next, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? वही अपना आर्टिकल 32. एंड आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, assertion and reasoning based. Assertion है Dr. B.R. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it. Yeah, we know this is correct, right? Next, Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. ये भी correct है. और अगर आप इसे connect करके पढ़ोगे, add because in both the sentences. Dr. B.R. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it because Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. Yes, this is making sense. See, fundamental rights are very much, they are just indispensable for humans, right? And उसको कोई right protect कर रहा है, उस right को हमने heart and soul बोला है. So it is making sense. So assertion is explaining the reason. So option A will be the correct answer. जब भी assertion and reasoning based question आए, add because in both the sentences. and अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ 0.5% भी ये सेंटेंस सेंस बना रहा है, सो मार्क इट करेक्ट. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स टू स्टॉप द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स लाइक हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शियरी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दिस इज करेक्ट. ये हमने रिट्स 5 मिनट्स में हमने रिट्स कवर करी है. इट इज अ 5 मिनट्स वीडियो ऑन द चैनल. गो एंड वॉच इट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द 5 रिट्स इन अ वेरी इजी लैंग्वेज. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है. ठीक है. सेकंड, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन द पावर्स गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट. सी, हमें पता है रिट जुरिसडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है एंड हाई कोर्ट के पास है, हमें आर्टिकल्स भी पता है. बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ये रिट्स की पावर किसी और कोर्ट को भी दे सकती है कि कोई और कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है. सो दिस इज करेक्ट. सी, ये वाली बात आप हमेशा याद रखना, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग. पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है. गेटिंग इट? वो अलग चीज़ है दैट येस, अब आफ्टर द केशव नंदा भारती केस दे आर सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बट वैसे पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India the Supreme Court is empowered to issue different writs for the enforcement of fundamental rights of the citizens. यहाँ पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 और अगर हाई कोर्ट पूछते तो आर्टिकल 226. यहाँ पूछा है सुप्रीम कोर्ट. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. ये हमने फर्स्ट रिट थी जो हमने डिस्कस करी थी इन दैट 5 मिनट वीडियो, दैट इज हेबियस कॉर्पस. आई टोल्ड यू ये पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी हो सकती है इशू एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी. गो एंड वॉच दैट वीडियो वंस. ओके, so which of the following writ is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person? It is habeas corpus. Option B. Next, which one of the following writs can be issued by a person to secure the liberty of the individual? Same, to secure the liberty, habeas corpus. Option C. Next, the writ which may be filed for protection of right to personal freedom. वही personal freedom, personal liberty, habeas corpus. habeas corpus का meaning भी पता है आपको? To have the body of. Okay. Next, हेबियस कॉर्पस लेट अस हैव द बॉडी. सो ए का होगा आपका फोर्थ. ओके, ए का होगा आपका फोर्थ. मैंडेमस मीन्स वी कमांड, सो मैंडेमस का होगा आपका थर्ड. प्रोहिबिशन, रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. बेसिकली हम प्रोहिबिट कर रहे होते हैं, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है. सो प्रोहिबिशन इज रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक है. सर्शियरी, बी फुली इन्फॉर्म्ड, या हम इसे ये भी बोलते हैं टू बी सर्टिफाइड. सर्शियरी का फर्स्ट है. को वारंटो हम पूछते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी, सो इसका सेकंड है. सो बेसिकली मैचिंग होनी चाहिए 43512 43512 43512. यस, इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी 43512. ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. यस, करेक्ट है ये. मैंडेमस मीन्स वी कमांड, ये भी करेक्ट है. बट क्वेश्चन में याद रखना पूछा है क्या नॉट करेक्ट है. प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड, नहीं, प्रोहिबिशन होता है टू प्रोहिबिट. सो ऑप्शन डी विल सी विल बी योर करेक्ट आंसर. उन्होंने पूछा है कौन सा रॉन्ग है. ठीक है. टू बी सर्टिफाइड कौन सी रेट है अपनी? सर्शियरी. ओके, सो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम. ठीक है, तो आप याद रखना लाइक प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्शियरी, क्वो वारंटो. पोस्टमार्टम मीन्स कोई चीज़ हो गई उसके बाद आप उसे करेक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली ये चीज़ होती है सर्शियरी में. ओके, इसमें लाइक इसमें भी हायर कोर्ट कमांड कर रहा है लोअर कोर्ट को कि अगर आपने अपना जुरिसडिक्शन एक्सीड कर दिया है तो आप अपने ऑर्डर को क्वेश कर दो या फिर आप केस को हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दो. तो बेसिकली दोनों चीज़ें कब होनी है? जब
केस डिसाइड कर दिया गया है, तो इसीलिए पोस्टमार्टम हम किसे बोलते हैं, सर्शियरी के रेट को। ओके, नेक्स्ट, इन विच पिटीशन जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंडमस मीन्स वी कमांड, कि हमने डिटेल में पढ़ा है उस वीडियो में, वी कमांड। इसमें जो अपनी जुडिशरी है वो पब्लिक ऑफिशियल्स को या एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करती है कि अगर वो कोई ड्यूटी अपनी फेल कर गए हैं परफॉर्म करने में, दे नीड टू परफॉर्म इट। सो इसका आंसर होगा मैंडमस। क्लियर? यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इशूज अ रिट टू अ पर्सन और टू एन इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, इट इज कॉल्ड सेम। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, आंसर विल बी मैंडमस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सी, राइट टू फ्रीडम हमें पता है आर्टिकल 19 to 22, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें पता है 25 to 28, 23 एंड 24 है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यस, डिटेल में कर रखा है हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में फंडामेंटल राइट के। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सही है, राइट टू इक्वालिटी सही है 14 to 18, हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29 to 30। इन्होंने हमसे ये पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, सो अपना जो नॉट करेक्टली मैच है वो है ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये है अपना आर्टिकल 25 to 28 में, और यहाँ गिवन है 23 to 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सी, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। हमें पता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है अपना 29 and 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 and 24, एंड राइट टू इक्वालिटी है अपना आर्टिकल 14 to 18। अकॉर्डिंगली आप मैच कर लो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है अपना, ए का होना चाहिए 4th, ठीक है। बी का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये होना चाहिए 3rd, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए अपना 2nd, एंड राइट टू इक्वालिटी अपना होना चाहिए 1st। तो अपना ऑर्डर होना चाहिए 4 3 2 1। ओके, 4 3 2 1 चेक करो किसमें है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये डी ऑप्शन में है।